For the literature students of MA English, here we go for the poetry that is Rime of the Ancient Mariner, written by Samuel Taylor Coleridge. We have, as we know that for the poetries, first of all we should know who is Samuel Taylor Coleridge. Samuel Coleridge was born in October 21st, 1772. He wrote many poems, The Rime of Ancient Mariner, Kubla Khan, Christabel, Limbo, and many more poetries he has written. As we know that Samuel Taylor Coleridge is contemporary to William Wordsworth, and as an English poet, literary critic, philosopher, who with his contemporary William Wordsworth was the founder of the Romantic movement in England, the member of the Lake Poets. He wrote the poem The Rime of Ancient Mariner, as well as the major prose work, the biographic literaria. His critical work, especially on Shakespeare, was highly influential, and he helped introduce German idealistic philosophy of English-speaking culture. He coined many familiar words and phrases, including the celebrates suspicious disbelief. As we come to our today's topic, that is The Rime of Ancient Mariner, is a poetry which is written in an old English version. As we know that the old English version, there are some of the words which is used with the th, and like many words in the poetry, which has its own different meaning, because the Samuel Taylor has used an archaic language which was influenced by Russian speaking English. The brief introduction of this whole poetry is that it all depends upon the sin and redemption of the sin as a Christian thought. A mariner is a man who, from the initial words when it starts in a brief, we see in the poetry that an old man, a mariner from a ship, stopped three of the people, those who are going for the wedding function. Among three, he stopped one of the men and starts telling the story in first stanza of the poem. Here, the Samuel has written about the man. He was having a glitter eyes, shining eyes, stops the man to go into the wedding function. यहाँ पर मैरिनर एक चमकीली आँखों वाला व्यक्ति, तीन व्यक्ति जो एक शादी के लिए कार्यक्रम में जाने के लिए उत्सुक थे, उनमें से एक को रोकता है और वो अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है. The story which tells about the mariner, he was having the glitter eyes, shining eyes, and a very skinny person. He started telling the story to a man. यहाँ पर पोइट्री के प्रथम स्टैंजा में शुरुआत में वो तीन व्यक्तियों में से एक को रोक करके अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है. इस पोइट्री में मैरिनर, एक समुद्री यात्री, अपनी कथा सुनाता है और वो सामने जिस व्यक्ति को रोकता है वो इंतज़ार में है कि उसके सामने एक वेडिंग सेरेमनी हो रही है, कार्यक्रम हो रहा है जहाँ उसको उत्सुक है जाने के लिए. उस कार्यक्रम के दौरान वहाँ पे अच्छा खाना लग चुका है, वहाँ संगीत बज रहा है और यहाँ उसकी उत्सुकता है कि वो जाए, लेकिन वो मैरिनर
उसे अपनी कहानी सुनाता रहता है। यहाँ पर टेलर कॉलरिज ने ऐसा बताने की कोशिश की है कि उसकी आँखों में एक आकर्षण है, हिप्नोटाइजेशन है, कि वो एक व्यक्ति रुक जाता है और बाकी उसके साथ के चले आते हैं और वो उसकी कहानी सुनने लगता है। वो शुरू करता है कि एक समुद्र यात्रा शुरू होती है, एक वॉयज स्टार्ट्स होता है, उसमें सभी यात्री बैठे हैं और उस पूरी यात्रा में करीब 100 लोग हैं और वो मैरिनर भी उसी यात्रा में शामिल है, उस जहाज़ में। बहुत सुंदर सा जहाज़ जो समुद्र से ऊपर से होते हुए जा रहा है। यहाँ पर here we find that while in the voyage the mariner and all the sailors were in the ship and the sails towards the flow of the wind, when they reaches toward the equator, the wind flows from to the north to the south of this of the pole, south pole, towards the south pole, and the ship tries to move from there. तभी अचानक बहुत तेज़ तूफान आता है या हवाएं चलने लगती हैं और वो पूरा का पूरा जहाज़ दक्षिण की ओर पहुंचता है। एंड इट्स मूव्स एंड ड्रिफ्ट टुवर्ड्स एंड मूव्स टुवर्ड्स द अनदर साइड डिफरेंट अवे फ्रॉम द इक्वेटर। जब यह जहाज़ समुद्र के बीचों बीच लगभग पहुंचता है, वहाँ पे बड़े बड़े आइसबर्ग हैं, बहुत सारे तूफ़ान आने लगता है, मिस्ट आने लगता है, फोम है, फॉग है और वो जहाज़ उस तरह से बढ़ता जाता है। उसके पीछे एक बर्ड है, अल्बाट्रोस। द बर्ड वॉज फ्लाइंग ऑन द शिप एंड द मैरिनर इज देयर इन द शिप। ही टॉक्स टू द albatross is a word which is normally found near the poles over the oceans. समुद्र की सतह पर उड़ने वाला एक एल्बाट्रोस पक्षी रहता है जो उस समुद्र पर उड़ता रहता है, उस जहाज़ का पीछा करता है, साथ में उनके चलने लगता है। अचानक जहाज़ चलता जाता है और एक ऐसे स्थान पर पहुंचता है जहां पर बहुत तूफ़ान आते हैं, हवाएं चलने लगती हैं और वह एल्बाट्रोस भी पक्षी वहाँ पे घूमता रहता है। यहाँ वो मैरिनर जो कहानी सुना रहा है उन 3 व्यक्तियों में से एक को, वो ये बताता है कि एल्बाट्रोस उससे मिलता है, बात करता है और बार बार उसके पास आता है, वो खाने को देते हैं और अचानक विदाउट ऑफ नो रीज़न विथ हिज क्रॉस बो ही हिट्स द एल्बाट्रोस एंड ही किल्स द एल्बाट्रोस। अचानक ये मैरिनर जो खुद है, जो कहानी सुनाता है, ये उस एल्बाट्रोस बर्ड को मार देता है और यहाँ से एक टर्निंग पॉइंट ऑफ द पोइट्री होती है कि जब वो जहाज़ एल्बाट्रोस मर जाता है और वो उसी जहाज़ पे गिर जाता है, जहाज़ आगे चलता है, वो चलते चलते अचानक जो सब कुछ अच्छा था वो धीरे धीरे बदलने लगता है और उस तूफ़ान में ना उन्हें कुछ खाने को मिलता है, ना ही अब परिस्थितियाँ बदल जाती हैं। द सिचुएशन इज़ चेंजिंग। यहाँ पर कॉलरिज ये बताने की कोशिश करते हैं कि वो जो बर्ड है उसके मर जाने के बाद जो मन स्थिति होती है, द माइंड सेट ऑफ द मैरिनर एंड द सेलर्स विच दोज हु आर ऑन द शिप, दे ऑल हैव देयर ओन डिफरेंट माइंड सेट। इसके बाद वहाँ पर परिस्थितियाँ बदलती हैं और वहाँ पानी भी नहीं रहता है। इस पोइट्री में एक जगह स्टैंजा आता है, वाटर वाटर एवरीवेयर एंड नो ड्रॉप ऑफ वाटर टू ड्रिंक। सभी तरफ पानी पानी रहता है, खारा पानी है, लेकिन पानी पीने को उनके पास एक बूंद भी पीने का पानी नहीं है। इस समय इतनी विषम परिस्थितियाँ हो जाती हैं कि वहाँ पर सभी जो नाविक हैं और उस बोट के ऊपर जो भी लोग हैं वो सारे के सारे उनके ओंठ सूख जाते हैं। दे फील दैट उनके गले में गला सूख जाता है और उनके लिए ऐसा महसूस होता है कि उनकी मृत्यु होने वाली है और पानी पीने को भी नहीं रहता है। इस वक्त वहाँ पर ऐसा भी वाक़या होता है कि वो पानी ना मिलने से अपने हाथ काट के वो खून को पी करके भी अपने प्यास बुझाते हैं। धीरे धीरे मौसम
बदलता है और अब वो जो बचे हुए यात्री हैं वो कहने लगते हैं कि ये जो बर्ड था एल्बाट्रोस, जिसको मारने से तुमने मारा था, और हमें पहले वही जो बर्ड था वो आपको मदद कर रहा था, लेकिन अब वो मर जाने से उसके पीछे जो आत्माएं थीं अब वो बुरा कार्य कर रही हैं। ऐसे ही समय बदलता है और आगे चलते हुए एक घोस्ट शिप आती है। उस पर 2 बहुत ही विकेट महिलाएं रहती हैं जो डाइस खेलती हैं, और जो बचे हुए लोग हैं उनको उस डाइस से उनकी आत्मा को हरण करना, उनकी आत्मा को ले लेने के लिए कार्य करती हैं। दीज घोस्ट विमेंस ऑन द विकेट विमेंस ऑन द अदर घोस्ट शिप, दे ट्राई टू मैरिनर विद द डाइस, दे प्लेज ए गेम। वो उस डाइस से ऐसा खेल खेलती हैं कि अगर कुछ ऐसे पासे होते हैं तो आत्मा लेते जाएंगे, और अंत में ये मैरिनर ऐसे बाकी शेष लोग जो थे उनकी उन डाइस के साथ में उनको लेते आते, वो सारे लोग मर जाते हैं। इसी बीच रास्ते में जब वो मैरिनर उस शिप पे रहता है, तब वो जो मरने के पहले वो लोग हैं वो एल्बाट्रोस को उसके गले में बांध देते हैं, उसी पक्षी को उनके गले में बांध देते हैं। एंड व्हाट हैपेंस दैट दे फील बैड एज द घोस्ट शिप कम्स टू दैट। आफ्टर दैट घोस्ट शिप the scene changes and the only person who left was on the ship was this old man, glittering eyes. The old man was remain there. And after the sea near to the coast, when he reaches to that near to his old destination, there when he reached to the destination, there the boat comes with 2 men. एक साधु नुमा व्यक्ति आता है जिन्हें वो ये कहता है कि जो आपने जो कर्स है, आपके जो पाप हैं जो आपने अपनी यात्रा में किए हैं, ये मर गया, और ये सारी यात्रा में जो आपको एक श्राप मिला है, उस श्राप से मुक्ति पाने के लिए आपको यही कहानी आपको सबको सुनानी होगी। और वो मैरिनर उस व्यक्ति को कहानी सुनाता है। ही टेल्स द स्टोरी इन ए फॉर्म ऑफ पोइट्री, इन ए फॉर्म ऑफ नरेटिव पोइट्री। हियर इट एंड्स दैट मैरिनर, वो हर्मिट व्यक्ति, उसे एक श्राप से बचाने के लिए बताता है कि वो जाए और इस जो पूरी यात्रा की वृतांत है वो जो भी इस पृथ्वी पे मिलता है वो उसको बताए और उसका उसी से उद्धार होगा। ये पूरी पोइट्री it is based on a Christian thought that once when you have done a sin, you have to pay or repent for that, and you can be redemption, you can get a redemption from this sin on the basis of your, this is curse, to removing from the curse you have to go and tell the story of this whole. As an ancient mariner, he tells the story, and the last we can say that this is a form of narrative story, narrative form of poetry. Here we find that though it's an old form of English written in this poetry, we see that the whole philosophical idea of that, it while on the when we move on the ship, we have an impact on the brain, and when we see that when the impact of the brain it have an idea, different ideas also. Other way, as इस पूरी पोइट्री में एक इकोलॉजिकल पॉइंट भी है कि when the nature is your friend and if you are hurting a nature, they will retaliate it. Like for this today's consequences, we have to respect the nature. Here in many stanzas we find that we have seen some of the line that the ocean is full of all mud and all the bad colors, it smells and have, ऐसी कुछ लाइनें भी हैं जहाँ पर समुद्र के बारे में बताया गया कि समुद्र गंदा हो चुका है और उससे बदबू आने लगी है। यहाँ पर कॉलरिज ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि हम प्रकृति के साथ अगर हम समन्वय नहीं बनाते हैं, उसके साथ नहीं रहते हैं, तो हमें उसके पनिशमेंट्स भी भोगने पड़ेंगे। आज के परिप्रेक्ष्य में यह पोइट्री बिल्कुल सटीक होती है
कि यदि हम इस प्रकृति के साथ में अगर हम न्याय नहीं करते हैं, इस प्रकृति के साथ न्याय नहीं करते हैं, तो प्रकृति हमारे लिए वैसे ही दंडित करती है जैसे किसी मनुष्य को हम प्रताड़ित करते हैं और वो दंडित करते हैं। और यही इस पूरी पोइट्री का सार है। एंड दिस इज ऑल वी कम टू द कंक्लूजन दैट in many points we see as a psychological effects is seen somewhere in this poetry. We have seen the moral of this whole poetry is that if we violate the rules of the nature will punish us. The rules of this nature is to protect the nature, live with the nature, because we are the nature and we have to be with the nature only. And this is all we have seen through this poetry. Thank you.